Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 10 जनवरी के हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी क्या नेम किया जाएगा, राइट। तो याद रखेंगे, अयोध्या एयरपोर्ट को तो पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है एंड इसकी नेमिंग की जाएगी एज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको। ये अगर हम देखें कुछ और कैबिनेट अप्रूवल, जैसे सबसे पहले पृथ्वी कैबिनेट ने अप्रूव किया ओवर आर्किंग स्कीम पृथ्वी विज्ञान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। दूसरा रहेगा, कैबिनेट ने एक एमओयू अप्रूव किया बिटवीन यूएसए एंड एमआरआईसी कंसर्निंग द कॉपरेशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट्स। देन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक एमओयू बिटवीन यूएसए एंड इंडिया फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवेज टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन। चौथा, कैबिनेट ने अप्रूव किया अयोध्या एयरपोर्ट को एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसकी नेमिंग की जाएगी एज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या। देन कैबिनेट ने अप्रूव किया एक एमओयू बिटवीन इंडिया एंड गायना टू कॉपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है, अकॉर्डिंग टू सीबीआरई इंडियाज रिपोर्ट विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूटेड हाईएस्ट शेयर ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। मतलब एमएसएमई में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का किस स्टेट का रहता है, वो डाटा यहाँ पे सीबीआरई इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया। तो कौन सी स्टेट रहेगी, वो है हमारी महाराष्ट्र। कितना परसेंट शेयर रहेगा महाराष्ट्र का, 17% शेयर रहता है। महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है आपका तमिलनाडु विद 10% शेयर, और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है आपका यूपी विद जस्ट 9% शेयर ऑफ एमएसएमई टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। ये जो रिपोर्ट है CREDAI, राइट, इसकी एक नेशनल समिट हुई थी, नेशनल न्यू इंडिया समिट न्यू दिल्ली में हुई थी। सॉरी, आई करेक्ट, कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में हुई थी। वाराणसी यूपी में हुई थी, और ये 5वां एडिशन था इस CREDAI समिट का, जो कि वाराणसी यूपी में हुई, 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच में हुई, करेक्ट। और यहाँ पे CBRE इंडिया रिसर्च इस न्यू इंडिया समिट का पार्टनर था, नॉलेज पार्टनर, करेक्ट। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये डाटा रिलीज किया गया कि महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ऑफ एमएसएमई इन इंडिया, ठीक। फिर इसी के बाद आपका एक उद्यम पोर्टल आ जाता है। उद्यम पोर्टल क्या बताता है आपका, कि ये रिपोर्ट बताता है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स डिजाइन टू प्रमोट एंड फॉस्टर ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज, कि एमएसएमईज को ग्रोथ लाने के लिए एमएसएमई सेक्टर में जो वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा। इवन आप देखेंगे मेटा, व्हाट्सएप, राइट, ये भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि अपने व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मेटा प्लेटफॉर्म के थ्रू एमएसएमईज को इंडिया में ग्रो कर सके, राइट। नेक्स्ट, and MSME clusters have emerged in cities like Agra, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Meerut and Ghaziabad. नेक्स्ट इज कोल इंडिया लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर एस्टैब्लिशिंग मल्टी स्किल डेवलपमेंट
इंस्टीट्यूट्स। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अभी NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ यहाँ पे एक MOU साइन किया, जो कि मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को ओपन करेगा इन वेरियस सब्सिडरी कंपनीज ऑफ CIL, ताकि वहाँ पे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ एक और चीज़ याद रखना, कोल इंडिया लिमिटेड ने एक और MOU साइन किया एडसिल के साथ, ताकि एजुकेशन को डिजिटाइज किया जा सके इन द 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। इंपॉर्टेंट टेक अ नोट कि झारखंड के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशन को डिजिटाइजेशन लाने के लिए, ऑनलाइन प्रोवाइड कराने के लिए ये CIL ने एक MOU साइन किया एडसिल के साथ। ठीक है, फिर फ्रेंड्स इसी के अलावा कुछ और क्वेश्चन, जैसे अगर आपसे पूछे जाए, जरा बताओ इंडोनेशिया में अभी एक वोल्केनो इरप्ट हुआ था, उसका नाम क्या था? इबू वोल्केनो। कहाँ पे था? इंडोनेशिया में। देन UN की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस होगी 2024 में, कहाँ पर होगी? श्रीलंका में होगी। देन इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है इंडिया की? वो है हैदराबाद। वो है हैदराबाद, और ये डाटा किसके द्वारा? मर्सर के द्वारा रिलीज किया गया। ठीक है, फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर कौन सा रहेगा? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपियम सोर्स कहाँ पर है? पहले अफगानिस्तान था, लेकिन अब म्यांमार बन गया है। राइट, म्यांमार ने अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया। करेक्ट। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं मिजोरम के? मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लाल दुहोमा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, लाल दुहोमा। देन अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ IIT दिल्ली ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया साइबर सिक्योरिटी टैलेंट डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए? तो वो है कैस्पर स्काई। राइट, कैस्पर स्काई का अगर आपको याद हो तो पहले एंटीवायरस आता था। राइट, अभी भी आता है। नेक्स्ट एक वैक्स स्टैचू लॉन्च किया गया, किन का? एट जयपुर वैक्स म्यूजियम। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किन का स्टैचू अभी एक इनॉग्रेट किया गया? तो वो है बाबा साहेब अंबेडकर का स्टैचू यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अभी इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया, और ये SBI की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया जो इनइक्वालिटी है ना इंडिया में, फिस्कल ईयर 14 से लेके फिस्कल ईयर 2022 के बीच में इनइक्वालिटी कम हो गई है इन इंडिया, डिक्लाइन हो गई है। अगर पॉइंट के हिसाब से देखें 0.472 से रिड्यूस होके 0.402% आपकी इनइक्वालिटी इंडिया में रह गई है अब। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक एज पर RBI ने अभी एक नई गाइडलाइंस रिलीज की कि किनको भी अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ वर्क करना है तो उनके पास मिनिमम कैपिटल पहले 100 करोड़ रुपीस का होना चाहिए था, लेकिन अभी इस वैल्यू को बढ़ा के कितना कर दिया है? 200 करोड़ रुपए। अगर अब आप अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहते हैं तो आपके पास 200 करोड़ रुपए होने चाहिए इन द बैंक टू एक्ट एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इवन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट, जो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहते हैं, उनको अपना भी कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपीस करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है कि कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए? 200 करोड़ रुपए यहाँ पे होने चाहिए। ठीक, RBI की बात करें तो शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, और 1 अप्रैल 1935 में ये स्टैब्लिश किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ट्रांजिशनिंग इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक नीड एन इनिशियल नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ रुपीज टू बी इंक्रीज्ड to 100 करोड़ रुपीज विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है अवार्ड एंड रिकग्निशन के ऊपर। तो अभी 81st एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया लोगों को ड्यूरिंग कैलिफोर्निया USA इन बेवर्ली हिल्स। तो यहाँ पे क्रिस्टोफर नॉलन की मूवी ओपनहाइमर, इनको 5 अवार्ड मिले। ये अवार्ड आपकी बेस्ट फिल्म इन ड्रामा, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर बाय लुडविग ग्वानसन, इनको इन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवी है ओपनहाइमर, इसमें ओपनहाइमर का रोल, रॉबर्ट ओपनहाइमर का रोल किसने प्ले किया? सिलियन मर्फी ने। राइट, एंड इनको यहाँ पर बेस्ट मेल एक्टर इन ड्रामा से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाता है फिर, हु हैज बीन नेम्ड फॉर द कुवेम्पू अवार्ड 2023। ये जो कुवेम्पू अवार्ड होता है ना, ये लिटरेटर्स को अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने किसी भी लैंग्वेज में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होता है। तो अभी श्रीशेंदु मुखोपाध्याय, ये एक बंगाली राइटर है जिनको अभी
कुवेम्पू अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, गिवन बाय कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 बाय द कुवेम्पू राष्ट्रीय केम्पू ट्रस्ट। उनको यहाँ पे 5 लाख रुपए, एक सिल्वर मेडल एंड एक साइटेशन से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा याद रखेंगे इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1989 में, एंड शी बिकेम अ फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी इन 2021। बंगाली राइटर श्री शेंदु मुखोपाध्याय। नेक्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। एक तो क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा याद रखेंगे किनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ SCLCS। SCLCS क्या है? सुप्रीम जज ऑफ द, और वी कैन से हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द SCLCS, दैट इज सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन कौन बने। तो 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले देखते हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं नालसा के, वो है जस्टिस संजीव खन्ना, पहली चीज। दूसरा याद रखेंगे चेयरमैन कौन बने हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के, वो है BR गवाई। BR गवाई ये चेयरमैन बने हैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं जस्टिस BR गवाई ये अपॉइंट किए गए एज द चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी SCLSC के, एंड संजीव खन्ना को ये सक्सीड करेंगे। और संजीव खन्ना क्या बन गए यहाँ पे? ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं नालसा के। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं संजीव खन्ना अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? संजय किशन कौल को सक्सीड करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं AC ने अपॉइंट किया whom एज सेक्रेटरी टू द रेलवे बोर्ड इन IRMS। तो किनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी टू द रेलवे बोर्ड इन IRMS? वो है अरुणा नैयर। मार्क करके चलेंगे, अरुणा नैयर ये इंडियन रेलवे पुलिस सर्विस ऑफिसर हैं ऑफ 1987 बैच, करेक्ट। एंड इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द सेक्रेटरी टू द रेलवे बोर्ड इन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम लेवल 16 विद इफेक्ट फ्रॉम 6 जनवरी 2024। एंड ये पहली IRPS ऑफिसर बनी जिनको एम्पैनल किया गया इन IRMS एट लेवल 16। ठीक, अरुणा नैयर। नेक्स्ट पे आते हैं, कनाडा की ब्रुकफील्ड सेट टू एक्वायर ETC इंडिया फॉर डैश अमाउंट। तो याद रखेंगे कनाडा बेस्ड ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट थ्रू देयर एफिलेट डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ये एक्वायर करेंगे इंडियन यूनिट ऑफ अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन। कितने में? $2.5 बिलियन के लिए यहाँ पे ये इसको एक्वायर करेंगी ETC इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी रिसेंटली रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन RDRE यह भी टेस्ट किया गया किस स्पेस एजेंसी के द्वारा? अल्बामा USA में। तो नासा जो कि USA की स्पेस एजेंसी है, इनके द्वारा ये RDRE रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन को टेस्ट किया गया, करेक्ट। ये बेसिकली एक रॉकेट इंजन है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंजन है जो कि जनरेट करता है थ्रस्ट पुश यूजिंग सुपरसोनिक कंबशन फिनोमेना, जिसको डेटोनेशन कहते हैं, राइट। मार्क करके चलेंगे। 251 सेकंड्स के लिए इसको टेस्ट किया गया था, एंड बेसिकली थ्रस्टर्स क्लासेस को और इंजन्स को अपना और बेटर करने के लिए ये एक टेस्ट किया गया था कि इट कैन बी ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंजन। देन नासा की अगर मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कौन रहेंगे? बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में रहेगा। 1958 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका नासा ने जो टेस्ट किया है रॉकेट डेटोनेशन रॉकेट इंजन, राइट, रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। देन इसके बाद आ जाता है नासा ने ही अभी रिसेंटली लॉन्च किया एक प्रीग्रिन मिशन 1 टू मून विद 5 पेलोड्स। ये नासा का मिशन रहेगा काफी टाइम बाद जो नासा ने अभी लॉन्च किया है यहाँ पर आफ्टर अपोलो 17 1972 के बाद। एंड इस जो मिशन है ये आपका प्रीग्रिन मिशन नासा ने के द्वारा जो लॉन्च किया, इसका मेन एम क्या रहेगा? टू आइडेंटिफाई वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन मून, मेजर रेडिएशन एंड गैसेस को अराउंड द लैंडर। एंड ये जो प्रीग्रिन मिशन है ना, याद रखेंगे ये सेट टू बी ऑपरेटेड फॉर अबाउट जस्ट 10 अर्थ डेज, 10 अर्थ दिन के लिए ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑर्बिटरी के ऊपर। अभी रिसेंटली जर्मनी के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के फुटबॉल प्लेयर एंड मैनेजर उनका रिसेंटली निधन हो गया। कौन है? फ्रैंक बेकबॉर, राइट, फ्रैंक्स बेकेनबॉर, राइट। ये जर्मनी वर्ल्ड कप टीम के फुटबॉल प्लेयर है एंड मैनेजर जिनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 78 इन ऑस्ट्रिया, राइट। इनका जन्म हुआ था 1945 में इन म्यूनिच जर्मनी एंड इनको निकनेम किया गया था द एम्परर इनका यहाँ पे निकनेम था। ठीक है,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। इसी को हम एनआरआई डे के नाम से भी जानते हैं। 9 जनवरी को ही क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे इन 1915, राइट। तो इसलिए 9 जनवरी हमने यहाँ डेट ली गई। एंड जो भी इंडिया का डायस्पोरा ऑल अराउंड द वर्ल्ड फैला हुआ है, राइट, उनकी अचीवमेंट्स को, उनकी सक्सेस को यहाँ पर हम सेलिब्रेट करते हैं एंड इंडिया की डेवलपमेंट में जो वो अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, इसीलिए हम ये प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर याद रखेंगे एनआरआई डे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2003 में, लेकिन 2015 के बाद से हम इसको 2 साल में एक बार ऑब्जर्व करते हैं, बाइनल बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट। तो जो 17वां एडिशन है आपका प्रवासी भारतीय दिवस का, वो हो रहा है 2023 में, मतलब इस बार हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और 18वां एडिशन ऑब्जर्व करेंगे 2025 में। फिर यहीं पे प्रवासी भारतीय दिवस की एक थीम याद रखेंगे। 17वें एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस की थीम वो क्या रहेगी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। आई रिपीट, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट आ जाता है फिर अर्थ रोटेशन डे। 8 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं अर्थ रोटेशन डे, कि अर्थ का जो रोटेशनल मोशन है उसकी सिग्निफिकेंस को कंट्रीब्यूट करने के लिए हम ये अर्थ रोटेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज। तो अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 अहमदाबाद गुजरात में, राइट। मार्क करके चलेंगे 7 से 14 जनवरी के बीच में ये आपका काइट फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाएगा अहमदाबाद गुजरात में, करेक्ट, साबरमती रिवर फ्रंट पर। एंड ये जो फेस्टिवल है इट मार्क्स द हिंदू कैलेंडर वेयर विंटर बिगिंस टर्निंग टू समर, मतलब मकर संक्रांति के टाइम इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 153 इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स फ्रॉम 55 कंट्रीज, 68 नेशनल फ्लाइट काइट फ्लायर्स फ्रॉम 12 स्टेट्स, 865 काइट एंथुजियास्ट फ्रॉम 23 सिटीज इन गुजरात, इनको यहाँ पे इन्वाइट किया जाएगा टू टेक पार्ट इन दिस काइट फेस्टिवल, जो कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है अहमदाबाद गुजरात में हो रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कोई एक वन लाइनर रिवीजन पर। कैबिनेट अप्रूवल्स हम देख ही चुके हैं। तो सीबीआरई इंडिया रिपोर्ट, यहाँ पे महाराष्ट्र ने कंट्रीब्यूट किया विद द हाईएस्ट शेयर ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया, तमिलनाडु एंड यूपी सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे। कोल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया विद एनएसडीसी फॉर एस्टेब्लिशिंग मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स। इंडिविजुअल इनकम इनइक्वालिटी की बात करें, ये डिक्लाइन हो गई ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 14 से 22 एज पर एसबीआई ईआरडी रिपोर्ट। देन आरबीआई डबल्स मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट टू 200 करोड़ रुपीज जो फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि पहले 100 करोड़ रुपीज थी। देन 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करें तो क्रिस्टोफर्स नॉलन्स, ओपनहाइमर, इनको 5 अवार्ड मिले। एंड ओपनहाइमर, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का रोल किन्होंने प्ले किया है, वो है सिलियन मर्फी। देन बंगाली राइटर शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, इनको नेम किया गया फॉर 2023 कुवेम्पू अवार्ड्स। जस्टिस BR गवाई हैज बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कॉर्पोरेशन। एंड संजीव खन्ना, जिनको ये रिप्लेस करेंगे, इनको अपॉइंट किया गया एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। नेक्स्ट एसीसी ने अपॉइंट किया अरुणा नैयर को एज द सेक्रेटरी टू द रेलवे बोर्ड इन IRMS। कनाडा की ब्रुकफील्ड सेट टू एक्वायर ETC इंडिया फॉर $2.5 बिलियन। देन नासा ने टेस्ट किया रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन इन USA। देन नासा ने लॉन्च किया प्रिग्रिन मिशन टू मून विद 5 पेलोड्स। फ्रेंच बैकेनबॉर, ये जर्मनी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के फुटबॉल प्लेयर हैं एंड मैनेजर हैं, जिनका रिसेंटली निधन हो गया। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2023 को 17वां एडिशन ये ऑब्जर्व किया गया था। इसी को NRI डे के नाम से भी जानते हैं। एंड अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद गुजरात में। तो दोस्तों ये हैं आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट भी ज़रूर करके बताना कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, राइट। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे मैं ला सकूँ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स देखते हैं जो आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने इंट्रोड्यूस किया न्यू डिज़ाइन फॉर एडमिरल्स एपुलेट्स ड्रॉन फ्रॉम द नेवल एलिमेंट्स इंस्पायर्ड बाय द राजमुद्रा ऑफ डैश। तो ये जो नए एपुलेट्स लॉन्च किए गए हैं इंडियन नेवी के द्वारा, छत्रपति शिवाजी महाराज के राजमुद्रा इससे इंस्पायर्ड रहेंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू RBI's लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, इनके द्वारा रिलीज की गई एक लिस्ट, इसमें से बताया गया इनमें से कौन से बैंक रहेंगे। दे नीड टू मेंटेन हायर कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड HDFC बैंक, इन दोनों को हायर कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट, डैश वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द CISF। तो CISF की पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट की गई हैं?
वो रहेंगी नीना सिंह। राइट, मार्क करके चलेंगे, नीना सिंह वो पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल बन गई हैं सीआईएसएफ की। फिर याद रखेंगे सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं, सीआरपीएफ के वो है अनीश दयाल सिंह। और फिर यहीं पे याद रखेंगे राहुल रसगोत्रा, ये डायरेक्टर जनरल बन गए हैं आईटीबीपी के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरीज ऑफ आईसीआईसी बैंक रिसीव्ड आरबीआई's अप्रूवल टू एक्वायर एग्रीगेट होल्डिंग ऑफ अप टू 9.95% स्टेक इन आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक एंड इंडसइंड बैंक। तो कौन सी रहेंगी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन दोनों को यहां पर रिसेंटली याद रखेंगे 9.995% स्टेक एक्वायर करने की बात की गई। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च किया ओसाइरिस एपेक्स, जो कि है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी अपोफिस एक्सप्लोरर। ये मिशन लॉन्च किया नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि एक एस्ट्रॉयड फ्लाई बाय करेगा 2029 में बाय अर्थ, उसको स्टडी करने के लिए। और उस एस्ट्रॉयड का नाम क्या रहेगा, अपोफिस। अपोफिस उस एस्ट्रॉयड का नाम रखा गया है। तो नासा के द्वारा ये मिशन प्लान किया गया है, राइट। और 2029 में फ्लाई बाय होगा इस एस्ट्रॉयड का अपोफिस, इसको स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट, फ्रेंच पॉलिटिशियन डैश हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, इनका भी निधन हो गया। 1985 से 1995 तक यहाँ पे यूरोपियन कमीशन के ये प्रेसिडेंट थे। क्या नाम रहेगा, जैक्स डिलॉर्स। राइट, मार्क करके चलेंगे, 98 की एज में इनका निधन हो गया। ये पेरिस फ्रांस से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस टू ऑल हाउसहोल्ड रूरल इंडिया बाय कब तक। तो जल जीवन मिशन के अंडर इनका एम है कि 2024 तक हम हर घर में, हर हाउस होल्ड में टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करा सकें। और अभी तक 70% से, या फिर हम बोले एग्जैक्ट टू बी 72% रूरल हाउस होल्ड्स में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा चुका है। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट विल गेट इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब। तो किस एयरपोर्ट को मिलेगा इंडिया का पहला इंटर स्टेट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, वो है IGAI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली में। यहाँ पर आप देखेंगे मेट्रो से कनेक्टिविटी होगी, RRTS से कनेक्टिविटी होगी, राइट। बस टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्टिविटी रहेगी, तो बहुत अच्छी यहाँ पे कनेक्टिविटी डेवलप होने वाली है। नेक्स्ट, किस IIT ने अभी रिलायंस जियो के साथ टाइप किया, ताकि भारत GPT, जो कि एक जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, एक AI प्रोग्राम है, इसको यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई IIT बॉम्बे के साथ, राइट। तो जियो ने टाइप किया IIT बॉम्बे के साथ। फिर यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे, IIT गुवाहाटी, इन्होंने भी टाइप किया है असम गवर्नमेंट के साथ, ताकि असम गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है उस पर वर्क कर सके, ताकि स्टेम सब्जेक्ट्स को प्रमोट किया जा सके अमंग द यूथ ऑफ असम। जो असम का यूथ है उनको यहाँ पे स्टेम प्रोजेक्ट्स में लाने के लिए, स्टेम सब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया। और ये जो टाइप है ये एक स्कीम के अंडर हुआ है, जिसका नाम रहेगा आरोहण स्कीम। चाइना एंड डैश कंट्री, इन्होंने मिलकर अभी 2 कॉपरेशन डॉक्यूमेंट साइन किए ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड टू बूस्ट दी स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली मोटा देखा जाए तो चाइना एंड इजिप्ट के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ, ताकि स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हम काम करें, चाहे उससे रिलेटेड स्पेसक्राफ्ट बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, या कुछ भी। तो इजिप्ट एंड चाइना के बीच में, चाइना की होती है CNSA एंड इजिप्ट की होती है EGSA, इनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। Next, which of the following abrogated article of the Indian Constitution has given special status to the state of Jammu and Kashmir? तो वो है आर्टिकल 370, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी राइट दे दिया टू एलिमिनेट दिस आर्टिकल 370, करेक्ट। इसको 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया था, द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन 5 अगस्त 2019। एंड ये जो आर्टिकल 370 है, ये ग्रांट करता है जम्मू एंड कश्मीर को टू मेक देयर ओन लॉज इन द मैटर एक्सेप्ट फाइनेंस, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड जो वो मैटर है वो उनमें डील कर सकते हैं, अपने लॉज बना सकते हैं, एक्सेप्ट इन दीज कैटेगरीज। ठीक, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवेल्ड एडवांस क्रार कॉम्बैट ड्रोन्स आर्म्ड विद एयर टू एयर मिसाइल। तो ये क्रार कॉम्बैट ड्रोन्स किसके हैं, ईरान के रहेंगे, राइट। इनकी रेंज रहेगी 1000 किलोमीटर तक की। इसी के साथ साथ एक थर्मल मिसाइल का भी नाम याद रखेंगे, थर्मल मिसाइल, क्या नाम रहेगा इसका, माजिद, राइट। माजिद नाम की थर्मल मिसाइल रहेगी, 8 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। इसको भी ईरान के द्वारा ही डेवलप किया गया है, राइट। एंड करार कॉम्बैट ड्रोन्स, ये भी ईरान के द्वारा। नेक्स्ट,
Which company has recently signed 588.68 crore rupees contract with Ministry of Defence to acquire Digital Coast Guard project under Buy Indian category? I repeat, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया 588.68 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एक्वायर द डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट अंडर बाय इंडियन कैटेगरी? वो है टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, राइट। इन्होंने अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट के लिए अंडर द बाय इंडियन कैटेगरी। एंड ये जो डिजिटल कोस्ट गार्ड प्रोजेक्ट है ये एक इनिशिएटिव रहेगा किस ऑर्गेनाइजेशन का? इंडियन कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट, रशिया की रॉसकॉस्मोस एंड यूएसए का नासा, ये दोनों इनकी स्पेस एजेंसी है, राइट। अगर आपको याद हो, रशिया ने बोला था कि हम 2024 तक, जब इन्होंने यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, 2024 तक हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एग्जिट कर देंगे, राइट। लेकिन अभी एक न्यूज़ आ रही है, नासा और इनके बीच में फिर से टाइप हुआ और ये 2025 तक इन्होंने अपना मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्सटेंड कर दिया है, राइट। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो 1998 में इसको लॉन्च किया गया था, जब रशिया और यूएस के बीच में कॉपरेशन अच्छा था। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर इन इंडिया एज ऑन दिसंबर 2023? तो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इंडिया में भी, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल, इन्होंने अनाउंस किया दैट द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द बेनिफिट्स ऑफ दिस रोड टैप स्कीम टू एक्सपोर्ट टू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स थ्रू वेरियस कोरियर एंड पोस्टल सर्विस। तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली रोड टैप स्कीम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, क्या रहेगी? तो रोड टैप क्या है आपका? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो आर क्या है? रेमिशन ऑन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, राइट। एंड पीयूष गोयल के द्वारा यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई फॉर रिफंड ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो कि आपके मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा लगाई जाती है, यानी रिमर्स नहीं की जाती है इधर बाय सेंटर स्टेट और लोकल स्टेट एट लोकल लेवल, ठीक है। बीसीसीआई इन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट ऑफ द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एमएस धोनीज आइकॉनिक जर्सी नंबर डैश। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे, इससे पहले सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 को भी रिटायर किया गया था एंड अब एमएस धोनी की जर्सी नंबर 7 को भी यहाँ रिटायर कर दिया गया है। ये रिटायर करने का मतलब है कि अब कोई भी आगे फर्दर इंडिविजुअल इन जर्सी नंबर्स को यूज नहीं कर पाएगा, ये इन लोगों के लिए यहाँ पे रिजर्व हो गई, इनको ऑनर करने के लिए। एमएस धोनी की बात करें तो पद्मश्री से इनको 2009 में सम्मानित किया गया था, पद्मा भूषण से इनको 2018 में सम्मानित किया गया था और ये सेकंड क्रिकेटर बने जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया इन 2007 एंड सचिन तेंदुलकर को 1997 में करा गया था। डीईए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, इन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम का टू डैश फ्रॉम 8%, राइट। 8% था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 8.2% फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24, राइट। तो कितना हो गया है? 8.2% हो गया, पहले 8% था। किसके लिए? सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के लिए। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिवाइज किया पीआईडीएफ स्कीम को, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को एंड एक्सटेंडेड द गाइडलाइन अंटिल डैश। तो इसकी गाइडलाइन कब से कब तक बढ़ा दी गई है? तो इसकी गाइडलाइन जो बढ़ा दी गई है अब टू डैश, कब तक बढ़ा दी गई है बताइए जरा? एक्सटेंड कर दी गई है 31 दिसंबर 2024 तक, 2025 तक, लेट मी करेक्ट यार, 31 दिसंबर 2025 तक इसकी एक्सटेंड कर दी गई है, करेक्ट। इसके अंदर जो भी आपके ये डिवाइसेस होते हैं, आप कहीं दुकान पे जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे पेमेंट्स तक डिवाइसेस होते हैं, साउंड बॉक्स डिवाइसेस होते हैं, राइट। आप उसके अंदर आप सब्सिडी ले सकते हैं एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। आप यहाँ पे पेमेंट करते हैं तो ये किस काम आते हैं कि आपकी पेमेंट की जो कंफर्मेशन है ना वो बोल के आप अपने सेलर को, जो दुकानदार है उनको बता सके, क्योंकि बार बार उन्हें चेक नहीं करना पड़ेगा, राइट। ये ईजी हो जाता है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे सब्सिडीज क्लेम कर सकते हैं फॉर दीज डिवाइसेस। नेक्स्ट, इन दिसंबर डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू केमिकली रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो समझोगे कि अभी प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए केमिकल का यूज करने वाली वो पहली कंपनी कौन सी बन गई इंडिया में, जो कि उसको कन्वर्ट कर देगी ISCC सर्टिफाइड पॉलीमर्स में, राइट। ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड पॉलीमर्स में कन्वर्ट कर देगी यूजिंग केमिकल प्रोसेस प्लास्टिक वेस्ट को। वो कौन सी पहली कंपनी बनी जो ये काम करेगी? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनकी ये कंपनी कहाँ सेटअप किया जाएगा? ये प्लांट कहाँ सेटअप होगा? जामनगर, गुजरात में ये सेटअप होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा रिलीज बाय NSE, किस स्टेट ने टॉप किया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स? तो महाराष्ट्र यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉप पे रही, या फिर वो स्टेट जो है जो टॉप पे रही वो है महाराष्ट्र विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स एज पर NSE। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 1.48 करोड़ इन्वेस्टर्स रहेंगे यहाँ पर। फिर आ जाता है यूपी सेकंड पोजीशन पे विद 89.47 लाख इन्वेस्टर्स। फिर इसके बाद आ जाता है थर्ड पोजीशन पे आपका, थर्ड पोजीशन पे कौन रहेगा? चलो ये कमेंट करके बताओ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में आपको कंफर्म करता हूँ, राइट। टॉप पर है महाराष्ट्र, क्योंकि टॉप इंपॉर्टेंट रहता है, ये तो जस्ट अभी
बात से बात निकलाई। थर्ड कौन सा रहेगा, सेकंड यूपी है, थर्ड नंबर पे टॉप कौन सा रहेगा। अगर हम क्रिप्टो की बात करने, अभी हमने देखा था कि दिल्ली स्टेट टॉप पर रही थी, ठीक, क्रिप्टो में। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एनटीपीएस एज वन नेशन वन पास सिस्टम। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ताकि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, जो हमारे वुड से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उससे जो एक्सपोर्ट्स हो सके, उससे जो ट्रांसपोर्टेशन हो सके, जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है, उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर ये वन नेशन वन नेशनल वन पास सिस्टम को लॉन्च किया गया। जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर, बैम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अक्रॉस इंडिया इजी हो सके, इसीलिए ये वन नेशनल वन पास सिस्टम को लॉन्च किया गया, जो है एनटीपीएस, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। नेम द 7th 250 मैन फेरी क्राफ्ट जो भी डिलीवर की गई बाय द शालीमार वर्क्स 1980 लिमिटेड टू द इंडियन नेवी। तो क्या नाम रहेगा उसका, मंजूला यार्ड 786, ये डिलीवर किया गया अभी टू इंडियन नेवी। ये 250 मैन फेरी क्राफ्ट रहेगी, शालीमार वर्क्स 1980 के द्वारा इसको डिलीवर किया गया। मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। 25 साल की इसकी लाइफ रहेगी। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड एंड मास्टर कार्ड टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो क्या नाम रहेगा उसका, वो है IDFC फर्स्ट बैंक, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड के साथ एंड मास्टर कार्ड के साथ, ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसमें कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं होगी, कोई भी एनुअल फीस नहीं होगी, एंड टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को यहाँ कैटर के कस्टमर्स को कैटर करने के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज हैव रिसेंटली ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2023। तो 2 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस इंदिरा गांधी पीस प्राइज से, वो हैं अली अबू अवाद एंड डैनियल बेरेनबोइम, राइट। इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज से, करेक्ट। फिर मार्क करके चलेंगे इसको, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नोवैक जोकोविच फ्रॉम सर्बिया, ये वो मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के वर्ल्ड चैंपियन बने फॉर 2023 फॉर द डैश टाइम, फॉर 8th टाइम। एंड वहीं पे अगर वीमेन की बात करूं तो बेलारूसियन टेनिस प्लेयर एरियाना सेबलंका फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहली बार वीमेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन बनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वीमेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन कौन बनी, एरियाना सेबलंका फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मेंस ITF वर्ल्ड चैंपियन कौन बने, नोवैक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं, फॉर द 8th टाइम। नेक्स्ट, RBI ने अप्रूव किया ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय डैश बैंक इन पार्टनरशिप विद क्रंचफिश AB फॉर अडॉप्शन बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो याद रखेंगे, अभी रिसेंटली RBI ने अप्रूव किया ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय HDFC बैंक इन पार्टनरशिप विद क्रंचफिश AB फॉर अडॉप्शन बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। ये जो ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स हैं, राइट, ये प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करेगा कस्टमर्स को एंड मर्चेंट्स को, ताकि वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकें ऑनलाइन मोड में, करेक्ट। फिर यहीं पे दिस सॉल्यूशन आप देखेंगे, PKI एक टर्म होगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली याद रखेंगे, ये क्या होगा कि जो पेमेंट्स आएंगे ना, उनको सिक्योर करने के लिए ये एक टर्म यूज़ किया गया। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऑफलाइन रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट ये किस बैंक के द्वारा डेवलप किया गया है, HDFC बैंक के द्वारा डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद क्रंचफिश AB, राइट। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु इज सेट टू रिसीव पद्मापनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल इन जनवरी 2024। तो वो है जावेद अख्तर, राइट। जावेद अख्तर यहाँ पे रिसीव करेंगे पद्मापनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जनवरी 2023 में, एंड ये 9th एडिशन रहेगा ऑफ दिस फेस्टिवल। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो वो कौन है, वो है लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज। ये दोनों वो इंडिविजुअल्स हैं, ये दोनों वो टेनिस प्लेयर हैं जिनको, और ये वो पहले इंडियंस बने जिनको इंडक्ट किया गया टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, एंड ये वो पहले एशियंस भी बने जिनको अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में ऐड किया गया टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, एंड ये वो इंडिया 28th नेशन बन गया है जिसको रिप्रेजेंटेशन मिली इन द हॉल ऑफ फेम। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.